مد نظر رکھتے ہوئے اس جہالت کو مٹانے کے لیے مدرسے کی ابتدا 2005 کے اندر نورانی مسجد مرکز میں ہوئی. 2005 نورانی مسجد مرکز میں ہوئی. یہ ہماری نورانی مسجد مرکز ہے. نہیں رہنے تو تکلیف نہیں. یہ ہمارے نورانی مسجد مرکز ہے جو پہلے اس طرح ہوا کرتی تھی، مگر اب یہ اس کی شکل بدل گئی ہے. اب اگر جا کر کوئی اگر دیکھیں گے تو یہ مسجد آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ یہ اس کو شہید کر کر ایک عالیشان مسجد اس جگہ پر بنائی گئی ہے. تو پہلے 2005 کے اندر اس جگہ میں ہمارا مدرسہ قائم ہوا. نیکسٹ پھر اس کے بعد آئندہ ایک منظم تعلیمی نظام بنانے کے لیے، یعنی وہ جو نورانی مسجد مرکز میں تھی وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر طلباء کو رہنے کے لیے صحیح رہائش کی جگہ نہیں تھی اور اساتذہ کے لیے بھی کوئی آرام گاہ نہیں تھی. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2007 میں ہمارے تمام ذمہ داروں نے 3 ایکڑ زمین، ابھی اب جو حضرات یہاں پر بیٹھے، یہ زمین 2007 میں لیا گیا. نیکسٹ یہ کچھ تصویریں ہیں زمین کی 2007 کی. نیکسٹ پھر اس کے بعد 2011 میں اس زمین میں تعمیراتی کام شروع ہوا. 2011 میں 2007 میں یہ زمین خریدی گئی اور 2011 میں تعمیراتی کام شروع ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حالات کیا تھے. یعنی 4 سال کا جو بیچ میں جو گیپ تھا، وہ 4 سال یہ جو رقم قرضے پر لی گئی تھی اس کو ادا کرنے میں گزر گئی. پھر 2011 میں الحمدللہ یہاں پر تعمیراتی کام شروع ہوا. نیکسٹ یہ کچھ تصویریں ہیں جب طلبہ نورانی مسجد مرکز میں تھے تو یہاں پر آ کر دعا بھی کیے تھے، اور یہ کچھ تصویریں ہیں. نیکسٹ یہ دیکھ لیجئے پلنتھ ہے اور یہ پلاسٹر سے پہلے کی بلڈنگ ہے. نیکسٹ پھر دیکھیے 2014 میں الحمدللہ تعمیری کام پورا ہوا، اور 2011 سے لے کر 2014 تک لگ بھگ 2.5 سال کے درمیان میں الحمدللہ ایک عالیشان بلڈنگ یہاں پر قائم ہو گئی. نیکسٹ اب دیکھیے جامعہ ایک نظر میں ان سالوں کے اندر جامعہ کی کیا کیا خدمات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر بھی ہے. سب سے پہلے یہاں پر کل طلبہ 60 طلبہ یہاں پر رہتے ہیں تام و قیام کے ساتھ، یعنی کھانے پینے کے ساتھ مکمل ان کی جو رہائش گاہ، ان کے آرام گاہ اور ان کا مکمل یہاں پر رہنا ہوتا ہے. ویسے 60 طلبہ ہیں. پھر یہاں پر کل اساتذہ 6 ہیں اور خادمین 3 ہیں، اور اب تک فارغ ہونے والے حفاظ 53 ہیں. کتنے بھائی 53 طلبہ اب تک یہاں پر حافظ قرآن بن چکے ہیں. آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ علاقہ ایسا تھا کہ ایک حافظ کو ہزاروں کلومیٹر سے یہاں پر بلایا کرتے تھے. دیکھیے اس زمین سے 53 حفاظ کرام اس زمین سے یہاں پر فارغ ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے جامعہ میں پڑھ کر دیگر اداروں سے عالمیت اور فضیلت مکمل کرنے والے طلبہ وہ 9 ہیں، اور ناظرہ مکمل کرنے والے طلبہ جو 25 طلبہ ہیں. اور کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو حافظ نہیں بن سکتے، ذہن ان کا کمزور ہوتا ہے یا کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے طلبہ ناظرہ مکمل کر کر کچھ بنیادی اسلامی معلومات حاصل کر کے مدرسے سے چلے جاتے ہیں. تو ائمہ کورس مکمل کرنے والے طلبہ وہ 15 ہیں، اور اب تک سمر کیمپ میں پڑھنے والے طلبہ ہوتا ہے. شعبہ دینیات کے اندر ان کو بیسک نورانی قاعدہ سکھایا جاتا ہے، قواعد سکھائے جاتے ہیں، اور قرآن میں کس طرح پڑھنا اس کی بیسک معلومات ان کو دینیات کے اندر دی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک شعبہ ناظرہ ہے. شعبہ ناظرہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو صحیح طریقے سے دیکھ کر پڑھنا آ جائے، یعنی قرآن کو دیکھ کر روانگی کے ساتھ پڑھنا آ جائے، اس کو شعبہ ناظرہ کہتے ہیں. شعبہ حفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کو زبانی مکمل یاد کرنا، یہ بھی شعبہ یہاں پر چلتا ہے. ایک بہت زیادہ ہو جائے گا. دارالقضاء کیا ہے کہ یہاں پر بہت سارے مسئلے مسائل ایسے بھی مسئلے یہاں پر حل ہوئے ہیں الحمدللہ. جو طلاق اور خلا کے قریب تھے وہ یہاں پر دارالقضاء میں آ کر الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ اپنے مسئلوں کو حل کرا کر ابھی وہ خوشگوار زندگیاں گزار رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے اندر مولانا عبدالوہاب صاحب میرے بڑے بھائی، اور اسی طرح اور میرے بڑے بھائی مولانا ابو شامہ صاحب، ان کی بڑی قربانیاں یہ دارالقضاء کو بہت اچھی طریقے سے یہاں پر چلا رہے ہیں. کئی ایسے کیسز ہیں، میں اس کی مجھے گنتی تو میں آپ کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. ہر ہفتے 2 کیس 3 کیس اس طرح روزانہ یہاں پر ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے حل بھی ہو رہا ہے. یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے دارالقضاء یہاں پر چل رہا ہے. یہ حج عمرہ کی تربیتی کام کا بھی ایک شعبہ ہے. بہت سے لوگ لاکھوں روپے کر کر حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں.
मगर उनको हज का सही तरीका नहीं पता होता है, अहराम पहनने का तरीका तक नहीं पता होता है, और उम्रा क्या है कहने का भी नहीं मालूम होता है, उम्रा किन चीज़ों का नाम है कहने का भी नहीं मालूम होता। तो लिहाजा उन जाने वाले लोगों को एक दिन 2 दिन का कैंप यहाँ पर रखकर उनको मुकम्मल यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग क्या है। नेक्स्ट ये देखिए जमीयत ओपन स्कूल में इसको मुकम्मल पढ़ नहीं सकता, बेवक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। मोटी ज़ुबान में समझ लीजिए कि हमारे मदरसे में जो तलबा हाफिज़ आलिम बनते हैं और कई तो मदारिस के मोहतमीम बनते हैं और वो शेखुल हदीस बन जाते हैं, मगर अगर वो दुनियावी तालीम अगर हासिल नहीं करेंगे तो वो दुनिया के नज़र में वो अनपढ़ हैं और जाहिल हैं, सरकार की नज़र में वो लोग अनपढ़ और जाहिल हैं। तो इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने, जमीयत वालों ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि हमारे मदरसे पढ़ने वाले तलबा आसानी के साथ कम से कम मैट्रिक तो पास कर सकें, और मैट्रिक से अगर ज़्यादा पीयूसी भी अगर हो जाए तो हमारे मदरसे के तलबा आसानी के साथ अपनी तालीम को जारी रखते हुए इसमें कोई कमी आए बगैर आप आसानी से मैट्रिक और पीयूसी को पास कर सकें। ऐसा एक सिस्टम जमीयत ओपन स्कूल ने बनाया है। तो माशाल्लाह वो भी हमारे जमीयत ओपन स्कूल का निज़ाम हमारे मदरसे में चल रहा है, और ये इतना आसान होता है। नेक्स्ट करो, पढ़ लें। ये इतना आसान होता है, और फेल हो गया तो दूसरी मरतबा बैठ सकता है। उसका मतलब 5 साल होते हैं, और 5 साल में 9 चांस उसको होते हैं एग्जाम देने के लिए। तो ये बच्चे क्या करते हैं, रोजाना अपनी क्लास खत्म करने के बाद, यानी जो मदरसे में पढ़ते हैं उसको क्लास खत्म करने के बाद 1 घंटा रोजाना जूम पर ऑनलाइन इसकी क्लास होती है, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बाकायदा प्रोफेसर जो सब्जेक्ट के माहिर होते हैं वो रोजाना 1 घंटा इन बच्चों को ऑनलाइन के जरिए से बच्चों को तालीम देते हैं। नेक्स्ट वन, ये सब तो देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, और यहाँ तक देख लीजिए मैट्रिक की सर्टिफिकेट इतनी अहमियत क्या ज़रूरत है कि उसके बगैर आपको अगर पासपोर्ट बनाना चाहेंगे तो आपको उस पासपोर्ट पर लिखा जाएगा कि आप अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। ECR और नॉन ECR का एक ऑप्शन उसके अंदर होता है, तो उस पर आपको जाहिल लिखा जाएगा। हालांकि आप बहुत बड़े मुदर्रिस हैं, शेखुल हदीस हैं, अगर आपके पास मैट्रिक के सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उस पर जाहिल और का धब्बा उस पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए वो जमीयत वालों ने एक शोबा है गवर्नमेंट का, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग करबोल को। ये जिस तरह CBSE बोर्ड है इसी तरह गवर्नमेंट का एक NIOS बोर्ड है। NIOS बोर्ड है, उसके अंदर उन लोगों का एडमिशन होता है जो रेगुलर क्लास को नहीं जा सकते, और जो ड्रॉप आउट हैं और जो रेगुलर स्कूल को नहीं जा सकते, या जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, ऐसे लोग इसके अंदर दाखिला ले सकते हैं। इसके दाखिले की उम्र क्या है, 14 साल से ज्यादा होना। बाद में उन्हें कितना भी रन दे, कोई उसकी लिमिट नहीं है। सिर्फ 14 साल से अगर उन्हें ज्यादा है तो घर बैठे, दुकान में बैठे, मदरसे में बैठे बैठे वो मैट्रिक और PUC को पास कर सकता है। नेक्स्ट, दाखिले के लिए ज़रूरी बहुत सिंपल है, उसके आधार कार्ड और माँ बाप का आधार कार्ड, और चलो और भी उसके फोटोज़ हैं, सिग्नेचर हैं, कुछ कोई ख़ास ऐसी कोई ज़रूरी दस्तावेज इसके अंदर नहीं होती। चलो नेक्स्ट, देखिए हमारे पास जो तलबा NIOS के ज़रिए से दाखिला लेकर जो एग्ज़ाम दिए, पहली मरतबा 2021 में जब हम शुरू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बागलकोट और बीजापुर ज़िले के अंदर सबसे पहले ये शोबा कायम करने वाले हमारे इदारे के जामिया दावतुल हक के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने फिक्रें की कि NIOS का शोबा यहाँ पर कायम किया पूरे बागलकोट बीजापुर के अंदर। तो 2011 के अंदर, बैक करो, बैक 2011 में उस वक्त मालूम नहीं था क्या है NIOS, क्या है, इसमें क्या होता है। तो उस वक्त सिर्फ 11 तलबा का एडमिशन हुआ। 2022 में 22 तलबा का, और 2023 में 19 तलबा का, 2024 में 13 तलबा का, और 2025 के एडमिशन चालू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इन 4 सालों में 65 तलबा ने NIOS के जरिए से दाखिला लिया, और उसमें से 40 तलबा इसके अंदर कामयाब भी हुए जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट हासिल किए हुए हैं। इसमें हमारे बहुत से ऐसे हुफ़ाज़ भी हैं जिनके पास हाफिज की सनद भी होगी, इंशाअल्लाह मैट्रिक के सर्टिफिकेट भी उनके हाथ में होगी। नेक्स्ट, जामिया की निगरानी में चलने वाले दिगर शोबाजात हैं, हिजामा कैंप है, और इसी तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप भी होता है। और उसमें नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान ऐसे होते हैं, उनको आगे के पढ़े हुए होते हैं मगर उनको जॉब का कोई तरीका नहीं मालूम होता है, तो ऐसे माशाल्लाह एक पर्सनालिटी वर्कशॉप कर उनको जॉब को भी मुहैया करने की कोशिश हम जामिया की तरफ से भी करते हैं। शोबे दावत व तबलीग है, और शोबे राब्ते मदारिस है। शोबे राब्ते मदारिस के जिम्मेदार हमारे पूरे बागलकोट के ज़िले के अगर कोई सदर हैं तो वो भी बेड़गी मदरसे
के मुहतमिम साहब, मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब भी पूरे बागलकोट जिले के शोबे राब्ते मदारिस के सदर हैं। और इसी तरह इस्लाम माशरा का काम भी जामिया की निगरानी में होता है। इसी तरह शोबे नशर व इशात, ये जितनी किताबें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, ये हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब की लिखी हुई किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 25 किताबें वो लिख चुके हैं, और वो कन्नड़ा जुबान, इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, कई जुबानों के अंदर माशाल्लाह मौलाना की किताबें यहाँ से छपती हैं। नेक्स्ट, ये कुल आमदनी वगैरह थोड़ा देख लें इसको, बस नेक्स्ट कर दें। ये कितना आया उसका है, ये कितना खर्च हुआ उसका है। चलो मौलाना नेक्स्ट। आइंदा के हमारे आज़ाम क्या, हमें अभी आगे और क्या करना चाहते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। कि एक शेर है कि सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। ये ना समझ ले कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं अभी बस हो गया, नहीं, आगे और भी करना है। वो क्या करना है, हमारे आइंदा के जो अज़ाइम हैं, एक मस्जिद आलीशान यहाँ पर कायम करना है। मस्जिद न होने की वजह से बच्चे तलबा हमारे हाल के अंदर नमाज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 5 साल आलिमियत कोर्स, शॉर्टकट आलिमियत कोर्स, क्योंकि आजकल 7 साल 8 साल पढ़ने वाले तलबा बहुत कम हो गए, तो लिहाजा उनको उनकी एज को देखते हुए 5 साल आलिमियत कोर्स कम से कम थोड़ा वो तो मालूम हो जाए, तो 5 साल आलिमियत कोर्स शुरू करने की भी हमारे फिक्रे हैं। इसी तरह एक स्कूल की बिल्डिंग भी इंशाल्लाह हम कायम करने की हमारे जामे की फिक्रे हैं। इसी तरह एक महाना रिसाला मैगजीन कन्नड़ा जुबान के अंदर पैसे देकर 4 रुपए 5 रुपए देकर रोजाना संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक लोग पेपर पढ़ते हैं, तो लिहाजा उन पेपर पढ़ने के बजाय महाना एक ऐसा रिसाला कायम किया जाए कि उस महीने के जितने भी मजमून होंगे इंशाल्लाह वो कन्नड़ा जुबान के अंदर इंशाल्लाह वो निकालने की, उसको शाये करने की हमारे फिक्र हैं। दुआ करें। नेक्स्ट, एक अभी तक मदरसे में क्या होता है, सुबह से शाम तक तलबा किस तरह पढ़ते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज होती है, एक वीडियो के जरिए से आप लोगों के सामने नशर किया जाएगा। मौलाना प्ले करें। बच्चे घर से जाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं।
بچے گھر سے جاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں سونے کی نہ چاندی کی نہ تاج و تخت کی خواہش شمیم سے دل کی رہتی ہے ہمیں فرشتے پر بچھاتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں بڑا اس زمین پر اپنے اوپر ناز کرتا ہے جہاں پر باوضو انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے جہاں پر باوضو انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے برستان